Very good afternoon, all of you. Very good afternoon to all of you here. So, welcome to Legal Adalat. We are waiting for Rabia ma'am to join, and she would join in any minute. Abhi. So, what exactly is Legal Adalat? क्या होने वाला है? क्या हम discuss करने वाले हैं? I'm going to be telling you once she joins. ठीक है, एक बार वो join करेंगी, फिर हम लोग discuss करेंगे as to what are we going to discuss in this particular session. So it's going to be a short session. Okay, it is not going to be a 1 hour long session. We'll take barely half an hour, and we'll complete this. Right? Good afternoon, guys. Good afternoon, all of you. So I'm just waiting for ma'am. Okay, I just texted her. So, okay, ma'am is joined. Ma'am. Hi, sir. Yeah. So Rabia ma'am is also here. Good afternoon, ma'am. So we are going to be having a discussion on the 103rd constitutional amendment, as we had already discussed, and I told all the students as well about this. Okay. Just give me 1 second. चाय So यहाँ पर हम लोग we are going to be having a discussion. So we are basically divided sides, both me and Rabia ma'am. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे. We will be discussing the EWS reservation and how it is basically going to violate the basic structure of India. हम लोग उस चीज के बारे में बात करेंगे. I'll be going pro, sir will be going against the thing, I believe. हाँ, मतलब I will be saying it is right. मैं बोलूँगा कि मैं बोलूँगी सही है ना, यही तो डिस्कस हुआ था. क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, मतलब I don't mind taking any sides. ठीक है, तो यहाँ पर चलो ठीक है, let's quickly begin with this ma'am. ठीक है, हम लोग start कर देते हैं. And so this is today's topic. As you can see on the screen, whether the 103rd constitutional amendment is in violation of the basic structure of the Indian Constitution. ठीक है, तो बच्चे चलो स्टार्ट करने से पहले लेट्स आस्क द स्टूडेंट्स की क्या लगता है, लाइक इज इट इन वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर और इज इट नॉट? ओके, वी हैव मिक्स्ड ओपिनियंस. लाइक वी आर आल्सो गोइंग टू, यू कुड से. सो देखो, मैं पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस आई एम प्रीटी श्योर दैट अ लॉट ऑफ यू मे नॉट नो व्हाट द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन इज. सो द पार्लियामेंट, अभी हमको पता है कि वी हैव द रिजर्वेशन इन इंडिया फॉर SC ST OBC कैटेगरी एंड ऑल, है ना. SC particularly ST and OBC category. Now generally India में ये realize किया गया that particularly जो general category है, these people do not have the reservation because they were already uplifted before you could say reservation policy came and they were like better than other categories, तो इसलिए उनको reservation नहीं दिया गया. The government felt that there are certain people within this category that are economically weaker sections. ठीक है, तो EWS reservation उनको दिया गया of 10% only in the general category. So this is not applicable to SC, ST or OBC category. That is a EWS reservation of 10% is given to the general category people. So अभी सुप्रीम कोर्ट में presently ये सच में केस चल रहा है. ठीक है, there's a 5-judge bench sitting on it and you could say debates have been going on and you could say arguments have been going on whether the 103rd constitutional amendment that provided 10% reservation to the general category under EWS, is it violative of the Indian Constitution or not? Right? तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये गलत है या क्या ये सही है. So ma'am, would you want to start this? Yeah, I'll start. No. Okay. अब तुम लोग लिखना बंद करो. सबसे पहले तो तुम लोग लिखना बंद करो और सबसे ये जो हिमू है ना, तुम थोड़ी शांत हो जाओ बच्चे. और ये सब मैसेजेस करना बंद करो, मतलब बड़ी भड़काने वाला माहौल बना देती है लड़की. यहाँ पर these arguments are only going to be legal. ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन भी नहीं है ना. मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा जनरली न्यूट्रली रहता हूँ कि हाँ या ना कुछ भी नहीं है मेरा ओपिनियन. बट यहाँ पर जो भी मैम बोलेगी, जो भी मैं बोलूंगा, ऑल ऑफ दैट इज वेरी न्यूट्रल. ठीक है, इट इज ओनली ऑन अ लीगल पर्सपेक्टिव और ट्राइंग टू प्रोवाइड अ लीगल पोजीशन. मतलब लॉयर्स क्या करते हैं, है ना. आज अगर मेरे को लगेगा कि भाई कुछ गलत किया था किसी मर्डरर ने या किसी टेररिस्ट ने, फिर भी एज अ लॉयर आई हैव टू रिप्रेजेंट हिम और हर, राइट, बिकॉज दैट इज माय जॉब.
So that is what we are doing right now, right? There is like no, you could say taking sides here. It's basically presenting a side here, right? Yeah, ma'am, you can start. So we'll start. Okay, great. So let me just put forward some of the points which I really believe is going to change your opinion about the EWS category. देखिए सबसे पहली बात or the very first thing, should I take notes? यार डिबेट हो रहे हैं इसमें, तुम क्या नोट्स लोगे छवि? क्या नोट्स लोगे इसमें? नहीं, नोट की जरूरत नहीं, सुन लो बस, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे आर्गुमेंट्स होते हैं. अरे मुझे सब पता है, ऑनलाइन जाती है ना यूट्यूब में, उसमें पूछते हैं, एमसीक्यूज कराती हूँ, मैम नोट्स लिख ले. अब इसमें क्या नोट्स लिखोगे एमसीक्यूज में? जस्ट सिट डाउन, sit back, listen to the topic. It's an important topic. तुम्हारे current में आ सकता है ये topic. It's a very very probable topic which can come. Sit back, listen to the pros and cons of it, listen to the features of it, and समझ में आने के बाद तो we will teach it to you in the classes only ना. तो थोड़ा chill मारो. शुरू करते हैं सर? Yeah, we'll start. Okay, great. Now, see, I'll be speaking for the EWS category. आप लोगों को पता है. So let me just tell you a little bit about it. देखिए पहले तो 2 पॉइंट्स में उठाऊंगी. द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आप इंडिया के बीपीएल लेवल्स को देखोगे, इफ यू एक्चुअली लुक एट द नंबर ऑफ पीपल इन द बीपीएल कैटेगरी, द बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी ऑफ इंडिया, आप देखेंगे आज भी वो नंबर इट्स मच मोर देन द इन द इंटरनेशनल एवरेज. द फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आज बीपीएल कैटेगरी में आके बैठे हुए हैं. एज ऑफ द लास्ट एस्टिमेट्स दैट वी सॉ, इनकम टैक्स का जो डेटा फाइलिंग हुआ था ना, उसमें सिर्फ 7.9 मिलियन इंडियंस थे जिन्होंने बेसिकली फाइल करा है फॉर इनकम अबव 5 लाख इन इंडिया. इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं, और तुम इमेजिन करो कितने सारों ने फाइल ही नहीं करा होगा, बिकॉज वी नो कि इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत ज्यादा है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत ज्यादा है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है. A large number of people cannot even take the benefit of reservations. That is the first criteria. The second problem that I have seen, which is actually going on in India, is about the demographic dividend of India. आप सबने ये पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, and I'm pretty sure you must have also seen it in the paper, कि the average age of the Indian right now is 29 years. मतलब एक इंडियन का एवरेज एज 29 इयर्स का है, और हम सब जो है एक तरीके से we are now slowly moving towards technological and in fact economical upliftment also. India is en route to become the third largest economy of the world. ये बनने के लिए हमारे पेपर्स में मल्टीपल टाइम्स ये आया है कि हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है. ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हाउएवर इज अ वेरी अनस्किल्ड डिविडेंड. बहुत सारे कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्किल्ड होते हैं. बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, एंड मोस्ट ऑफ दीज रीजंस आर यूजुअली सोशियो इकोनॉमिकल रीजंस. We all know that socially बहुत सारी चीजें इंडियंस को बैकवर्ड लेके जाती है, इकोनॉमिकली बहुत सारी चीजें इंडियंस को बैकवर्ड लेके जाती हैं. द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप, अगर हम ये बार बार बोलते हैं ना कि हम एससीज को तो देते ही हैं रिजर्वेशंस, हम एसटीज को देते ही हैं, हम ओबीसीज को देते ही हैं, you have to understand that these are a very separate class of people apart from this. The basic problem with the Indian people, or in fact the understanding of reservation, is people don't know the difference between a class and लोगों को क्लास और एक सेक्शन के बीच का डिफरेंस नहीं पता. So I'll explain that to you so that you have a better understanding of what I'm getting at. अगर आप एक सेक्शन का मतलब समझोगे, I'll just tell you this meaning. Imagine करो there is a lady. ये जो लेडी है, there are ladies in India. में बहुत सारी औरतें हैं. कुछ औरतें दिल्ली की होती हैं. अब भाई दिल्ली की औरतें यूजुअली काफी एम्पावर्ड होती हैं. They are very empowered. वो भाई IAS IPS बन जाती हैं. For that matter वो एक टाइम पे they become great lawyers also. वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी बन जाती है, मिनिस्टर्स बन के निकल जाती है. So they have all the positions and all the places which can actually empower them to become a better person. आप इसी औरत को अगर आप टाउन में भेज दोगे तो फिर भी उनके पास थोड़े से ओपननेस रहेगा, but still they will be a little downtrodden. लेकिन अगर आप इसी लेडी को आप मे भी एक ट्राइबल एरिया में भेज दो या आप एक गांव के एरिया में भेज दो, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये लेडी काफी ज्यादा डाउनरोडेड है. यूजुअली शी इज रियली पुट डाउन, एंड इन अ वेरी सिंपल मैनर वो कभी भी वो इक्वालिटी उसको नहीं मिलेगा जो एक आदमी को मिलता चाहिए. आपको समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन. तो मगर ये बात हमें ये भी पता है कि ये एक ट्रांजिएंट सिचुएशन है. ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगा कि जिंदगी भर एक औरत को दबाया जाएगा. गांव में भी औरतों का अपलिफ्टमेंट हो रहा है. दिस इज अ ट्रांजिएंट सिचुएशन. ये जो नंबर ऑफ विमेन गांव में रहती है ना, इनको हम सेक्शन कहते हैं. दिस इज अ सेक्शन. अ क्लास ऑन द अदर हैंड इज अ परमानेंट फीचर. बट व्हाट आई मीन बाय अ परमानेंट फीचर इज कि इमेजिन करो, जैसे कि मैं एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है मेरा, हम कहते हैं रामनाथ कोविंद. वी से
कि ये जो इंडिविजुअल है ही वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अभी हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा बनी है, हम उनके लिए भी बोलते हैं दैट शी इज द फर्स्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं, बट जस्ट इमेजिन ये स्टेटमेंट बोलने में ही कितना गलत है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द क्लास ऑफ अ पर्सन, द कास्ट ऑफ अ पर्सन, जो इंदिरा साहनी में क्लास एंड कास्ट को बेसिकली एक ही पोजीशन दे दिया गया था, ये पोजीशन एक परमानेंट फीचर है. इसी फीचर को अगर आप क्लास के ऊपर लेके जाएंगे, ये जो हमारा सेक्शन वाला पॉइंट है, दिस इज अ ट्रांजिएंट सिचुएशन. अभी इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड अपना रीप करेगा, तभी जाके फ्यूचर में हम ये वी विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. तभी जाके आज जो हम चाइना को देख के गुस्साते हैं, वो हमारा गुस्सा थोड़ा कम होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी विल बी इन पार विद देम. वी विल ट्राई एटलीस्ट, थोड़े कंधे पे तो हम आएंगे ही आएंगे. द पॉइंट इज वी डू नॉट इवन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ सेक्शन इज, व्हाट अ क्लास इज. और हम इस डिबेट में घुस रहे हैं कि रिजर्वेशन गलत है, रिजर्वेशन गलत है. ये तुमको समझना पड़ेगा कि ये रिजर्वेशन का जो सिचुएशन है, दिस इज ओनली फॉर एन इंक्लूसिव इकोनॉमी. इंक्लूसिव इकोनॉमी अगर लानी है, आपको इंक्लूसिविटी लानी है, तो फिर आपको ये देना पड़ेगा. यू कैन नॉट से कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सोशली बैकवर्ड, या जस्ट बिकॉज तुम्हारे टाइटल के बगल में से त्रिपाठी लगा है या पांडे लगा है, तो तुम फॉरवर्ड सेक्शन हो, तो तुमको जिंदगी में रिजर्वेशन नहीं देंगे. भाई सबसे ज्यादा डाउन रोड यही लोग रहते हैं. और अगर इनको तुम आज के डेट में नहीं बढ़ाओगे, या आप इनको नहीं बढ़ाएंगे आज के डेट में, these will be the people who will not give you the dividend in the future, and you will be crying, India ना बढ़ नहीं पाया, India ना गंवार देश है. तो this is something that you will go on doing. That is where we need to put a full stop on. ये जो EWS reservation आ रहा है, this is the first upon the quantifiable data. I'm just trying to make you understand the data about it. First thing. Third point. कोई भी इंसान जो EWS कैटेगरी में आएगा, आपको पता है कि उसका फैमिली इनकम 8 लाख रुपया होना चाहिए. ऑन द बेसिस कि वो न्यूक्लियर फैमिली का है, उसका 8 लाख रुपया होना चाहिए. भाई 8 लाख रुपया अगर किसी के फैमिली का इनकम है, वो EWS में आता है. हमने बोला कि भाई आपने इतने सारे लोगों को ले लिया है, तो भाई एक तरीके से आप SC ST का क्या होगा, OBC का क्या होगा. आपने एक चीज यहाँ पे शायद मेंशन नहीं करा, आपको पता नहीं होगा. OBC कैटेगरी का जो कैटेगरी था इनिशियली, इट वाज 8 to 12 लाख. 8 से 12 लाख का जिनका इनकम होता था, उनको क्रीमी लेयर में माना जाता था, और उन लोगों को रिजर्वेशन से हटा दिया जाता था. When the EWS category came, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक चेंज करा है इन द OBC कैटेगरी. ये करा है कि ये जो 8 लाख, अब 8 से 12 नहीं रहेगा, सीधा 8 लाख होगा. 8 lakh is going to be the limit for you to be called an OBC, for you to take reservation under the OBC. And similarly, 8 lakhs is going to be the limit for you to take any type of reservation under the EWS also. That is the first thing. Second thing, when you actually look at ये जो सारा डेटा वगैरह आप देखते हो, ये आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एक तरीके से लगेगा. So education will also be given over there. Thirdly, हम सबको ये बात पता है, ये जो बार बार एक लोग बोलते हैं ना कि वो हमारा 50% सीलिंग जो है वो टूट जाएगा अगर हम EWS कैटेगरी को देंगे. तो माय क्वेश्चन इज, किस केस में ये 50% डिफाइन करा गया था? आई कैन गारंटी वन थिंग कि 90% ऑफ द पीपल सिटिंग हियर, उनको ये भी नहीं पता होगा कि कौन से केस में हमने 10% को 50% रिजर्वेशन सीलिंग डाला था. उस सीलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली, दैट इज द रॉन्ग आंसर विजया, ये गलत जवाब है. लेट मी जस्ट क्लैरिफाई यू ओवर हियर, द इंदिरा साहनी इज अ रॉन्ग आंसर. सो लोगों को पता भी नहीं है कि वो क्या है. अगर आपको ये नहीं पता है, आपको मंडल केस कैसे पता होगा? अगर आपको मंडल केस नहीं पता है, तो हाउ डू यू थिंक यू विल नो अबाउट द काका कालेलकर कमीशन? इफ यू डोंट नो दैट, हाउ विल यू नो इंदिरा साहनी? इफ यू डोंट नो दैट, हाउ विल यू नो द N नागराज केस? दैट इज द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स. तो when you are understanding a case, you need to understand कि किस तरीके से ये reservation दिया जा रहा है, how a transient situation is different from a permanent reservation, how this is going to help you in developing the demographic dividend of India. And बात करा हमारे basic structure का. Basic structure की बात अगर आप बार बार आते हो कि हाँ भाई मैम basic structure जो है हमारा वो चला गया, basic structure चला गया. भाई basic structure 2006 में ये बोला गया था कि 50% reservation जो है वो basic structure का part है. बट वो SC ST OBCs का है. यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एन EWS कमिटी. EWS कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो EWS SC ST में नहीं है. तो आप उसको बार बार यहाँ पे नहीं ले सकते हो. दैट इज द फोर्थ पॉइंट. Then we'll debate forward. अब सर आप बोलो. I've been speaking for 15 minutes now. No, it's been going well. मतलब I'm enjoying it, sitting here and I'll just listening. If you're done, I'll start. So यहाँ पर okay, so ma'am raised certain very important points about the 50% criteria, about the economic upliftment of certain class or sections of society, and she also talked about the 8 lakh criteria जो OBC का भी हो गया, जो EWS के लिए भी दिया गया.
So there are certain very basic, you could say, legal points here. Firstly, जो 50% the criteria that was given, so that was, I understand, that was OBC, and so Mandal Commission report ने बोला था that 52% of the Indians, ठीक है, 52% of the Indians belong to this new category called OBC, जिसके बारे में पहले कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं था उससे पहले, ठीक है. We only discussed about SC and ST communities. We never discussed about the इससे पहले हुआ था काका कलेक्टर कमीशन 1955. नहीं, I mean the Supreme Court never gave a lot of, you could say, recognition to this community. So यहाँ पर मंडल कमीशन ने पहली बार बताया कि इंक्लूडिंग ओबीसी एंड एससी एंड एसटी 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलोंग्स टू you could say reserved category, ठीक है, whereas 30% is the general category who have been like generally also uplifted. वो उनका मतलब रिजर्वेशन का एंटायर पॉइंट ही यही है कि जो उनके जो लाइक फोर फादर्स थे या फिर जो भी थे, दे वर रियली, यू कुड से, डाउन ट्रॉडन. दे कुड नॉट डू अ लॉट, यू कुड से, फाइनेंशियली आल्सो, सोशली एज वेल, ठीक है. मतलब सोसाइटी में दे हैव नॉट बीन गिवन एज मच रिस्पेक्ट बिकॉज़ इंडिया में जनरली देयर वाज दिस वर्ना सिस्टम आल्सो जो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा था. देयर इज अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल हु हैव ऑलवेज बीन केप्ट लोअर एट द हायरार्किकल लेवल. नाउ not what we have to understand here is why was there a 50% ceiling given here is that merit should also be given, because अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया भी 6th largest economy हो गया, 5th हो गया, you want to take it to second, third or maybe say first in next 50-100 years, we need a lot of, you could say, smart and meritorious people for that. I am not saying कि reservation ज्यादा करने से या फिर कम करने से वो merit खत्म हो जाएगा, but यहाँ पर the main one of the major ideas here was कि अगर हम 50% reservation करेंगे so 50% at least we will be able to give it to merit, ठीक है. We will be able to give you, you could say, यहाँ से merit, we will be able to understand as to how to go about this, how to understand, right? Now Indira Sahni, because Indira Sahni again was an 8 judge bench judgment, so the 5 judge bench judgment cannot clearly say कि Indira Sahni गलत था, तो we can't argue दे कि Indira Sahni में कुछ भी बात गलत बोली है, वो तो मतलब that would be, you could say, exceeding our limits. What we have to understand here is, what we have to kind of argue here is कि क्या EWS reservation गलत है? Is it a violation of the basic structure? So basic structure, again, for those who do not know basic structure का मतलब होता है कि constitution का हर part amend हो सकता है other than this basic structure, ठीक है. Any part of the Indian constitution is amendable, और other than this basic structure generally part 3 में fall करता है, mostly the fundamental rights that are not alienable. Again, first thing, which is reservation is not a fundamental right, ठीक है. Reservation clearly not a fundamental right. There have been like cat and mouse judgment which says it कि reservation को fundamental rights नहीं मान सकते हम. Reservation is basically upon the state to provide or not. Now the question here is, ठीक है, the question here that comes in front of is कि क्या EWS reservation people from the general category who again constitute 30% part, और इंदिरा साहनी जजमेंट में एक बात ये बोली थी कि reservation cannot be provided solely on the economic criteria. जो OBC वाला reservation था, that was a caste criteria plus economic, because article 15 और 16 दोनों ये बात बोलते हैं कि it has to be on the basis of caste, religion, है ना, you cannot discriminate on these basis. And then there is particular SEBC community which is you could say social and educationally backward classes, and these people will be given reservation, ठीक है, इन लोगों को reservation मिलेगा. Now when this kind of differentiation is given, इंदिरा सोनी ने बहुत clearly ये बताया था कि ओबीसी रिजर्वेशन हम लोग इसलिए अलाउ करेंगे बिकॉज इट इज नॉट मियरली इकोनॉमिक. यस वी अंडरस्टैंड वो क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट आया था, बट इट इज कास्ट बेस्ड एज वेल एज पर द मंडल कमीशन रिपोर्ट, व्हिच वी आर, यू कुड से, एक वो उसका लिमिट जो पुराने केसेस में आया था उसको वापस से अफर्म किया था बाय द लार्जेस्ट बेंच एवर जो रिजर्वेशन के किसी केस में बैठी थी, which was 50%, ठीक है. इसको 50% को अफर्म कर दिया था फाइनली. नाउ द आइडिया हियर वाज, ठीक है, यहाँ पर ये आइडिया था कि 50% रिजर्वेशन अगर रहेगा तो जो अपलिफ्ट, जो इंडिया में जो थोड़ी डाउन ट्रॉडन कास्ट है, दे विल बी अपलिफ्टेड, और 50% रिजर्वेशन रहेगा बिकॉज देयर आर पीपल एंड वी एज अ कंट्री नीड पीपल हु आर मेरिटोरियस एज वेल टू टेक द कंट्री अहेड फ्रॉम देयर, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि जो रिजर्वेशन वाले लोग मेरिटोरियस नहीं होते, ठीक है, लाइक विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ मेरिट दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस कंट्री. 10% जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है ना, only legally speaking, ठीक है, this is not again my personal opinion, only legally speaking, जो 8 लाख वाला criteria is something I fail to understand, because 8 लाख वाला इंसान इसके अंदर आएगा. आज अगर मैं अपने पेरेंट्स की इनकम क्राइटेरिया, while I'll tell you कि इंदिरा सोनी में उसको मेजर एक प्रॉब्लम क्यों भी था, 8 लाख क्राइटेरिया was something that was prescribed. अगर मेरे पेरेंट्स की इनकम 8,10,000 है, ठीक है, अगर my family income is 8,10,000 per annum, I am out of this category.
और मेरी हालत इसी कैटेगरी जितनी है, 10,000 रुपए में मैंने कुछ नहीं उखाड़ा पूरे साल में, ठीक है। तो यहाँ पर द प्रॉब्लम हियर इज, एंड देयर कैन नॉट बी अ फिक्स्ड क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल से आई एम अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई, yes, 8 lakh rupees के अंदर I will be somebody who will be under the, you could say, a line यहाँ पर 8 lakh में my parents may not be able to make the ends meet. But for example, जैसे मैम ने बताया कि कुछ सारे जैसे गांव में, अब दिल्ली की आपने बात करी, तो दिल्ली में क्या होता है, 8 लाख अगर दिल्ली में कमा रहा हूँ मैं, तो that is not enough, ठीक है। Everything is a little more expensive. If I'm talking about, say for example, a village in say Uttar Pradesh or in Bihar, there 8 lakh rupees is a very good income where a person can lead a decent amount of decent life, and India is still a village of a country. किसने बोला ये बात आपको? किसने बोला? मतलब लाइक तू एक्चुअली टोल्ड यू कि यूपी बिहार में 8 लाख में जी भाई, यूपी बिहार में 8 लाख में ना तुम मतलब यू कैन नॉट इवन हैव अ कार। मतलब दिल्ली में तो 8 लाख में तुम एक नैनो लेके घूम लोगे, वहां पे भाई तुमको मतलब एक फटफटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कार वैसे भी इस देश को अमीर या गरीब नहीं बनाता, कार तो अभी भी लग्जरी है इस कंट्री में। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द यूएस, ठीक है। तो यहाँ पर आइडिया है लग्जरी, कार इज नॉट अ लग्जरी, यू नो वी हैव टू रियली गेट अप फ्रॉम दैट। अ कार इज नॉट अ लग्जरी, कार जो होती है इट्स अ नेसेसिटी इन लाइफ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप जो बोल रहे हो कार नेसेसिटी नहीं हो सकती मैम इंडिया जैसी कंट्री में। आई विल फर्स्ट क्लिक ऑन दिस। बोल रहे हो ना कि 8 लाख रुपया ना, 8,10,000 वाले की बात आप मतलब क्या उसका क्या होगा? तो मेरे तब तो एक काम करते, रिजर्वेशन का मतलब अमाउंट ही बढ़ा देते, लेट अस मेक इट 25-30%, ताकि यू नो जितने भी लोग बेचारे 8 लाख 10 लाख से ऊपर आ रहे हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर दें। आई मीन इट वुड मेक सम इट वुड मेक I am saying economic as a criteria is wrong. Economic, because you can't fix a criteria, right? Somebody who's staying in Mumbai, somebody who's staying in Delhi or any metropolitan city for that matter, generally उनका expenses ज्यादा होगा than somebody who's staying in villages. This is very clear, ठीक है। कार तो कोई criteria नहीं है। If I stay in Delhi, when I am from Ara, I'm from Bihar, मतलब मैं एकदम core बिहार की हूँ। I stay in Kolkata and I stay in Delhi also. तो ये मेरा personal experience है। मैं जब दिल्ली में रहती हूँ and say I'm working, मेरे लिए एक टाइम खाना खाना इज अ वेरी इजी थिंग। मैं नीचे जाती हूँ और मुझे 70-80 रुपए में एक बढ़िया सा थाली मिल जाता है जिसको मैं बैठ के आराम से खाती हूँ, मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ता। हाँ, अगर मैं यही चीज जाके आराम में करती हूँ, मुझे उसी एक प्लेट का खाना का अप्रोक्सीमेटली 250 रुपया भरना पड़ता है फॉर दैट सिंपल प्लेट ऑफ दाल चावल सब्जी एंड यू नो मेबी आई एम आल्सो फ्रॉम आबू, और मैं अभी पिछले 6 महीने पहले दिल्ली शिफ्ट हुआ और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वापस घर जाना चाहिए बिकॉज़ इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे हियर। मतलब हो सकता है कि बहुत ज्यादा different experiences हो सकते हैं लोगों के, but again it's not a different experience. It is something that you would see in the data also. I mean, the data that you would get, you would see that the cost of living over here is obviously going to go down. Delhi में it is much cheaper as compared to staying somewhere over there. The first thing. Second thing, अगर आप total reservation criteria की अगर हम basic structure के ऊपर वापस आते हैं, आप अगर आप इस चीज को समझो, you have to understand the amount of amenities which will be available to a person. गांव में अगर आप पढ़ाने को बैठाएंगे किसी को भी, तो आपको पता है कि एक तो आपको वो चीज भी नहीं मिलेगा और आपको वहां पे पैसे भी देने पड़ेंगे। हो सकता है पैसे कम मिले, but the point is whatever you're getting for the value of money is nowhere correct. That's the first thing. The second thing, if you go to Delhi for a lesser amount of time, आपका लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी देखो 60, आप जब हम लोग 8 लाख की बात करते हैं, 8 लाख बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट ने रखा है। आप दिल्ली में रहो, आप 8 लाख रुपया में लेके रह रहे हो, आप आराम से लाइफ जी सकते हो। आई नो पीपल जो दिल्ली में 50,000 रुपया महीना कमाते हैं। अरे मैं जब दिल्ली में थी, मैं 50,000 महीना कमाती थी, अब मैं बहुत अच्छे से जीती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड व्हेन यू गो बैक टू द विलेज, यहाँ पर भी वो अमाउंट बहुत अच्छा अमाउंट है। सो द अमाउंट दैट द गवर्नमेंट हैज सेट एज द पैरामीटर इज एन एब्सोल्यूट करेक्ट अमाउंट। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिबेट हियर। द डिबेट हियर इज क्या हम ये जो अमाउंट है, क्या ये अमाउंट, द क्वेश्चन इज नॉट द अमाउंट, द क्वेश्चन इज क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। सो माय पॉइंट इज, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट जो है वो कैसे कर सकता है? सी, बार बार हम जो 50% की बात करते हैं कि 50% रिजर्वेशन है इंदिरा साहनी में तो ये था ही नहीं। सबसे पहले ये एमआर बालाजी में था। इट वाज एन एमआर बालाजी केस, इट वाज द केस ऑफ 1952 which was done after the first constitutional amendment. Judges again, 5-6 judges again, and Indira Sahni was 8 judges again. तो जब इंदिरा साहनी ने तो all those judgments, the reservation limit की बात करें, so the reservation limit was set in the MR Balaji case. It was reiterated in the Indira Sahni case कि हाँ भाई 50% ही रहेगा। But अगर आप further cases को उठाकर देखोगे, we will have to understand this one very simple thing. आप एक चीज समझो कि यहाँ पे हम जो 10% को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को मद्देनजर देते हुए रखते हैं। और इज एनीवन ओवर हियर सेइंग कि भाई हाँ एक काम करते हैं, एक सेक्शन ऑफ लोगों को लेते हैं, बाकी सेक्शन ऑफ लोगों को छोड़ देते हैं। दैट्स नॉट व्हाट वी कैन डू, राइट? रिजर्वेशन तभी अप्लाई होगा जब लोगों को एनेबलिंग फैक्टर मिलेगा। एनेबलिंग फैक्टर तभी मिलेगा
एनेबलिंग फैक्टर जो है वो तभी आपको मिल सकता है जब आप एक तरीके से आप गांव में हो. जस्ट इट्स वेरी सिंपल. आपको एनेबलिंग तभी हो पाएगा जब आपको वो चीज अवेलेबल करा दी जाएगी. फॉर एग्जांपल आपको घर एक तरीके से दिया जाएगा, आपको एक अच्छी तरीके से यू विल हैव द वे ऑफ गोइंग ओवर देयर, यू विल गेट क्वालिटी एजुकेशन. द पॉइंट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी ओवर हियर, द पॉइंट इज अबाउट द क्वालिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर क्वालिटी की बात कोई करता ही नहीं है. दैट इज अ वेरी सिंपल परसेंटेज. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो अपार्ट फ्रॉम दैट ओबीसी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज अगर आप देखोगे, क्योंकि वो क्रीमी लेयर वाला 8 से 12 लाख वाला चीज इन्होंने कम करा है, तो काफी नंबर ऑफ पीपल वहां पे कम होते हैं. दैट इज द सेकंड थिंग. तो यहाँ पर आप देखो तो एक सिंपल टर्म्स में आपको ये चीज यहाँ पे कम होता हुआ दिखेगा. ओवरऑल रिजर्वेशन, सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन विद इन द 50%. एंड सबसे बड़ा बात है, बार-बार ये 50% जो हम उठा भी रहे हैं तो उठाने ही नहीं चाहिए. इट्स वेरी सिंपल that entire 50% वाली जो चीज हम बार-बार बोल रहे हैं, ये ट्रांजिएंट सिचुएशन है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट सिचुएशन. कास्ट इज अ परमानेंट सिचुएशन. दिस इज व्हाट आई एस्टैब्लिश्ड इन द वेरी फर्स्ट टाइम. बट कास्ट ये बहुत हमने पहले बोला था कि ये परमानेंट फीचर है, तो उसके लिए बहुत दिनों से रिजर्वेशन दिया जा रहा है. बट इसको भी यू नो कि धीरे-धीरे गवर्नमेंट फेज आउट करने की कोशिश कर रहा है. इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन. ईडब्ल्यूएस में भी हम एग्जैक्टली वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपको एक ट्रांजिएंट टाइम देना पड़ेगा. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो आज भी बीपीएल कैटेगरी में है. क्या ये कोई भी इंसान ये बोल सकते हैं कि अच्छा है बीपीएल में है तो मरे बीपीएल में ही रह के? Nobody can say that. And if you're saying that, no, seriously, आपका कोई mental issue है. It's very simple with that. If you're saying कि आज जो downtrodden है उनको downtrodden ही रहना चाहिए, तो इट इज वेरी सिंपल. ये जगह डाउनट्रोडन है तो ये डाउनट्रोडन ही रहेगा. आप ये तो बोल ही नहीं सकते हो. तो 50% जो ये अमाउंट है, इज इट एन इकोनॉमिक डेफिनेशन अगेन? या इट दे आर डाउनट्रोडन. अरे आप बताओ एक बात. इमेजिन करो आप 60,000 रुपए सैलरी लेके हो. चलो लेट मी गो बैक ओवर देयर. आप सोचते हो कि चलो मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजता हूँ. यू नो दिस वन वेरी सिंपल सर, कि क्या हम उसको एक अपने बच्चों से, मेरे 2 बच्चे हैं, तो क्या हम इन दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं? नहीं. Can we send them to a good school? We can never do that. We can't do that. Again, that was my question when I started this argument कि मैं 8 लाख रुपए नहीं कमाता हूँ, मैं 8,10,000 रुपए कमाता हूँ, तो मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में नहीं आऊंगा. बट मैं भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजता हूँ. तो मैं क्या करूँ? क्वेश्चन हियर, आई थिंक आप क्वेश्चन से डाइवर्ट कर रहे हो. क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट कर रहा है? द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द अमाउंट ओवर हियर. द क्वेश्चन इज कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारा तोड़ रहा है? सो my question to you again, do you think कि हमारा basic structure तोड़ रहा है? The question is not about the amount. आप amount को साइड कर दो. ये amount है, I agree. But क्या ये what is basic structure according to you? आप मेरे को थोड़ा सा बताओगे कि आप just one second. Someone at the door. Sure. Thank you so much. I'm sorry, I've not been well, so मतलब मेरा medicines वगैरह आ रहा है. That is the point. No, ma'am, it's okay. So यहाँ पर I'm just trying to understand what is your definition of basic structure. Because HR Khanna couldn't define it. I will really like you to try it out. Nobody has defined it. It is actually a ghost concept. It was created in the case of Nanda Bharti case. Why do you think it was created? सिकरी जी ने जब इसको बनाया था तो सिकरी जी ने बहुत अच्छे से ये बात बोली थी कि भाई ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है. एंड आई डोंट नो वेदर यू नो द स्टोरी बिहाइंड द एंटायर जजमेंट. एंड इट वाज बेसिकली टू गोस्ट इंदिरा गांधी की एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाओ जो वो चाह के भी अमेंडमेंट ला के चेंज नहीं कर सकेगी. सो डूइंग दैट थिंग दे हैड एक्चुअली क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट. एक गोस्ट था वो जिसमें उन्होंने बोला था कि एनीथिंग व्हिच चेंजेस द बेसिक द बेसिक पॉइंट ऑफ द बेसिक पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था हमारे फोरफादर्स का एक व्यू था, राइट? आवर फोरफादर्स हैड अ व्यू विद इट. व्यू को इन लाइन रख के हम किस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, दैट इज द थिंग ओवर हियर. ठीक है कि इसको हम लोग कैसे करेंगे. एंड एनीथिंग व्हिच इज लुकिंग टू चेंज द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, एवरीवन नोस वी आर अ डेमोक्रेसी, वी कैन नॉट चेंज दैट. हम इसको चेंज करके कुछ और नहीं बना सकते. अगर हम बोलते हैं इंडिया इज अ रिपब्लिक, वी नो दैट अच्छा ऑब्वियसली इंडिया में मोनार्की तो आ नहीं सकती, तो रिपब्लिक ही है, हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड ही होगा. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग ओवर हियर. ये जो हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं एक बहुत सिंपल सी चीज है. इंडिया में हमारे प्रियम्बल को आप उठा लो, आप हमारे आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को उठा लो, यू टेक अप द पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, हर जगह मेंशन किया हुआ है दैट वी हैव टू गिव इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी टू द पीपल. अगर हमें इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन लोगों को देना है तो वी हैव टू गिव देम सम अमाउंट ऑफ थिंग व्हिच विल हेल्प देम इन कमिंग अप. रिजर्वेशन अगेन
बार बार you have to understand it is not a policy, it is a right. ये जो हमारे EWS कैटेगरी के लोग हैं, they have been facing a lot of issues. क्या आप ये बोल सकते हैं कि everyone is doing well? You can never say that. इनको ये right देना, it's a temporary situation. Again, understand the difference between a section and a class. अगर आपको ये class and section के बीच का difference समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई debate जो है वो है ही नहीं. There's absolutely no debate here. It's a transient situation. You have to give it time. डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं लाना है क्या? क्या करना है कि इंडिया भाई जिंदगी भर ऐसे ही रहे, हम आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो जाए हमारा, मतलब कभी जिंदगी में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से इंडिया का डेवलपमेंट होगा, मतलब सो चलो ठीक है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. मैम कुछ आपने पॉइंट्स रेज किए कि आपने एक बार बोला कि रिजर्वेशन एक राइट है. आई एम स्टिल स्टक ऑन 2 ऑफ माय पॉइंट्स जिसका मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला कि 8 लाख का इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और मेरे को पता है कि 8 लाख से जो नीचे कमा रहा है वो इंसान, चलो ठीक है, दैट पर्सन इज नॉट गुड इनफ टू सेंड हिज किड्स टू स्कूल और कुड से प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली एंड सो ऑन, राइट. बट मैं तो 8 लाख 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं भी बिल्कुल लाइक आई एम नॉट आल्सो एबल टू काइंड ऑफ you could say provide for my family, send my kids to school. मैं दिल्ली में मेरे पास में एक स्कूल है यहाँ पर बहुत फेमस इंटरनेशनल. उससे थोड़ा बाहर निकलिए, मतलब क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, आप ही का टॉपिक है, टॉपिक इज ऑन द स्क्रीन. 103rd is in violation of the basic structure. आपने मुझे बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन नहीं बताया, आपने मुझे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग और उसका 22 का definition of the basic structure. It is an evolving concept. The reason why it is called a doctrine is because it does not have any particular definition. वो अपना evolving concept बनता है. नहीं, with I mean in this context, in the reservation context that we are arguing here, what would be basic structure and how, like एक तो मतलब जैसे there are 2 aspects of it, right? There is something which is a basic structure and second argument would say कि भाई this basic structure को नहीं को violate कर रहे हैं, है ना. अगर आप मुझे वो बता पाओगे तो I would be able to rebut slightly easier. मतलब मैं fact नहीं rebut कर सकता कि आप बोल रहे हो कि constitution maker ने constitution बनाया था. I told you the entire thing. I told you the entire thing. अब मैं क्या बोलूँ आपको, लिख के दे दूँ. लिखने का ऑप्शन नहीं है. I didn't gather it. Okay, I just want to understand कि basic structure क्या है in the reservation context. आप अगर मेरे को वो बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं गलत हूँ. Is Article 46 a part of the basic structure or not? ये बता दो. It isn't. Is Article 46 a part of the basic structure or not? Is directive principles a part of the basic structure? Can you take Article 46 and go to a court and argue कि मेरे को economic वो बराबरी नहीं मिली है? Can you take Article 46 and ever argue in the court of law? You're telling me a different thing. What do you think Article 46 is? अरे बेसिक स्ट्रक्चर अगर मेरा वायलेट होगा, है ना. आर्टिकल 46 टॉक्स अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, दैट्स फाइन, ठीक है. दैट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो काफी सारी. आई कैन टेक अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड गो टू अ कोर्ट एंड से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, 44 वायलेट हो गया. नहीं है तो नहीं है, ठीक है. दैट इज समथिंग दैट द स्टेट शुड प्रोवाइड, बट स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड. You are seriously not getting it. I am seriously you're not getting it. Okay, I'll tell you. सुनिए, The basic structure doctrine, इंदिरा साहनी केस जो हुआ था वो क्यों हुआ था? I'll give you a gist about. देखिए ऐसा हुआ था. एक मिनट, एक काम करते हैं मैम. I gave you a lot of time to speak and I gave you enough time to speak and did not intervene. So when I speak, I would expect some. आप बोलिए ना, आप भी तो मुझे पूछ रहे हो. I'm telling you. नहीं, I'm not asking. I'm just posing question. आप ऐसे मैं लिख लेता हूँ questions, ठीक है. I'm just trying to understand. पहली बात तो मुझे इकोनॉमिक क्राइटेरिया में मेरे को है ना ये समझ नहीं आया. आप 1 by 1 आंसर कर देना हर चीज का, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रहे चीजें, राइट. तो यहाँ पर 8 लाख इनकम क्राइटेरिया है, विच आई डू नॉट एग्री, क्योंकि मेरी इनकम 8,10,000 रुपए है. मैं भी अपने 2 बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा, मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं खरीद पा रहा, ठीक है, और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, उसको भी कुछ नहीं मिल पा रहा, ठीक है. और उसके बाद में ठीक है, सेकेंड पॉइंट हियर इज यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर, and with respect, I understand there is no definition for basic structure, but reservation के perspective में what is basic structure, ठीक है. This is what I'm trying to understand here. Other than that, जब हम आर्टिकल 46 की बात करते हैं ना, आर्टिकल 46 is not justiciable in a court. तो अगर मैं आर्टिकल 46 को बेसिक स्ट्रक्चर में घुसाऊंगा ना, तो मैं कोर्ट में जाकर बोलूंगा कि भाई मेरा आर्टिकल 46 वायलेट हो गया, तो कोर्ट बोलेगा कि क्या करें फिर, है ना. ऐसे तो आर्टिकल 44 भी पूरे देश का वायलेट हो गया गोवा के अलावा. तो the idea here is कि Article 46 can never be argued in a court of law. ठीक है, it can only be argued in if it's a part of the constitution also. तो अगर मैं 15-16 के साथ में 46 argue कर रहा हूँ, then only I can argue 46 in a court of law. ठीक है, मैं ऐसे argue ही नहीं कर सकता. तो Article 46 will only become a part of the basic structure when it is, you could say, coupled with Article 15 and 16. 15 and 16 ने साफ-साफ बोला था
कि nobody with respect to you could say public wealth, public जो 15 वाला आर्टिकल है जो बोलता है कि आप कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको you can't discriminate anybody on the basis of sex, gender, you could say caste, कलर, रिलीजन, जो भी इनका रीजन है, ठीक है, जो उनका एथनिसिटी वगैरह है उनके बेस पे नहीं कर सकते. सेम कम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट. बट अगेन सिंस देयर आर सर्टेन पीपल इन सोसाइटी, जैसे आपने स्टार्ट किया था, दिस इज सेड कि ऑब्वियसली पीपल यू कुड से वुमेन इन दिल्ली are more you could say empowered as compared to women in a village in you could say some other state. So that is true. ठीक है, that is why the government itself in the original text of the constitution brought that saying कि भाई यहाँ पर for women, for children and for certain socially and educationally backward classes we should provide reservation, to which a lot of judgments starting from M.R. Balaji to Indira Sawhney, and there are a lot of judgments after that as well जिन्होंने promotions वगैरह काफी clear किए हैं कि उस पर reservation होता है या नहीं होता है. ठीक है, तो इंदिरा सोनी इज द लार्जेस्ट बेंच जजमेंट ऑन रिजर्वेशन इन इंडिया एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड वी विल रिलाई ऑन इंदिरा सोनी फॉर एवरी आर्गुमेंट वी मेक, बिकॉज़ दैट इज वन जजमेंट दैट इज काइंड ऑफ गिवन क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रीवियस जजमेंट्स आल्सो. ठीक है, एमआर बालाजी की अगर मैं बात करूंगा तो आई कैन रिलाई ऑन एमआर बालाजी इन सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट की 8 जज 5 जज की बेंच को मैं 5 जज का जजमेंट थोड़ी दिखाऊंगा, मैं उसको 8 जज का दिखाऊंगा, बिकॉज़ यू कांट ओवररूल दैट, राइट? सो इट्स एज सिंपल एज दैट. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इंदिरा सोनी ने जो बातों को नया बोला था या जो बातों को रीआइटरेट किया था, दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम. इंदिरा सोनी ने कहा था फॉर ओबीसी रिजर्वेशन आल्सो देयर इज अ कास्ट क्राइटेरिया एंड देयर इज एन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, दैट इज व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग इट. In the EWS category there is only an economic criteria which is also not very clear, because 8 lakh rupees, I still stick to my point, a person staying in Mumbai and a person staying in a village in any state in India, if we talk about Rajasthan or UP, will have different expectations. मेरे पेरेंट्स आज they stay in a town, they have बहुत कम expenses compared to what I am you could say incurring here in Delhi. That is because जब आप बड़ी सिटी में रहते हो आपकी डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है चीजों की, you do have access to more things, right? आज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस इज नॉट अ वेरी जनरल एग्जाम्पल ऑल्सो. इन माई प्लेस इन आबू और यू कुड से एनी विलेज अगर हम बात करें, यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑर्डरिंग फूड. ठीक है, मतलब यू कैन नॉट जोमेटो स्विगी बिकॉज इट्स नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. while it is available everywhere in Delhi or in Mumbai or in any other city, मेरा उसी से आधा एक्सपेंस बढ़ जाता है कई बार, बिकॉज आज मुझे भूख लगी तो मैं कुछ बनाऊंगा नहीं, मैं कुछ मेहनत नहीं करूंगा, आई विल ऑर्डर समथिंग. ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑन दिस. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कोई एक्सपेंस बढ़ा रहा है मेरा या फिर दिस इंक्रीज द एक्सपेंस इन अ सिटी. आई एम जस्ट सेइंग एवरीथिंग इज मोर डिफिकल्ट. यहाँ पर अगर आप दिल्ली में एक घर लोगे, इफ यू टेक अ प्रॉपर 3 BHK इन अ डिसेंट प्लेस, इट विल कॉस्ट यू 50,000. मेरे आबू में जो 3 BHK हमारा घर है, no one will give us 15,000 also for that house, बिकॉज वहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है. आपने एक और बात रेज करी कि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलेगी. मतलब फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में मैं आया हूँ तो मैं कमा भी ज्यादा रहा हूँ एज कम्पेयर टू आबू, लेकिन जब 6 महीने पहले भी अनअकैडमी में था, मैं अभी भी अनअकैडमी में हूँ, तो मतलब मैं उस टाइम भी उतना ही कमा रहा था, मैं अभी भी उतना ही कमा रहा हूँ. देयर इज नो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट. ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन हैज ब्रिज्ड दैट गैप. आज हो सकता है कि हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कोई बिहार के विलेज से भी आया हो और कोई दिल्ली से भी आया हो और कोई बॉम्बे में कोलाबा में बैठ के भी क्लास ले रहा हो. ठीक है, तो इट डजंट मैटर कि स्टूडेंट्स कहां से हैं. द टेक्नोलॉजी हैज काइंड ऑफ यू कुड एक तरह से उसने मिला दिया है टू काइंड ऑफ ब्रिज दैट गैप एट लीस्ट फॉर नाउ. ठीक है, फॉर नाउ इट हैज बीन डन. नाउ अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट. ठीक है, मैं थोड़ा सा पॉइंट से इधर चला गया. आई जस्ट वांट टू टेक अ फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट. आई वांट यू टू टेक अ फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट. पहला पॉइंट आप प्लीज पहले लेना. Why economic criteria as per me is not a viable option, particularly there are 2 reasons for it. People जो थोड़ा सा भी economic criteria से ऊपर आएंगे ना, उनकी भी situation EWS वाली ही है. 8,10,000 वाले की situation भी EWS वाली ही है, but I'm out of that criteria now. उसके बाद में economic criteria, legally speaking, as per Indira Sawhney, cannot be the sole criteria for giving reservation. ठीक है? Yeah. पहला एक क्वेश्चन का जवाब दो भाई. तुम गर्लफ्रेंड बीवी दोनों मेंटेन कर लेते हो, हमसे तो एक ना हो रहा है. फिलहाल तो आई एम नॉट मैरिड एंड आई एम सिंगल, सो मतलब देयर इज नथिंग दैट इज देयर. बट हां, मतलब आई वुड रियली वांट टू काइंड ऑफ हैव द मनी टू काइंड ऑफ यू नो just wanted to understand that is the first thing. Okay, anyways, so now let's come to the point. Now the first thing, ये सवाल बहुत जरूरी था, मतलब बच्चे परेशान हो रहे थे सर, तो मैंने सोचा पूछ लूं एक बार कि मतलब otherwise you would have these people know more about my personal life than I do. I would have called you more, मतलब मैं आपको कॉल करती, मतलब to understand how do you exactly balance that out to understand that. Okay, now the first thing, तो अच्छा पहली बात इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आते हैं. देखिए पहली बात समझिए, ये आप
एक बात हम लोग बार बार बोल रहे हैं, शायद ये बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा. द थिंग इज, इंदिरा साहनी केस में इन्होंने इकोनॉमिकल कैटेगरी की बात ही नहीं करी थी. द टॉपिक, द रीजन ऑन basis on which the people were basically divided in the Indira Sahni case was the social and educational backwardness के ऊपर इनको जज करा गया था. Economic backwardness की बात नहीं करी गई थी in this case. So it was always educational backwardness which was focused upon during the time of 1992 during the Indira Sahni judgment. ठीक है, पहली बात. तो ये एक स्टेटमेंट ही गलत है कि क्या ये इकोनॉमिक बेसिस पे हम इसको कैसे कर सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2, अगर आप इकोनॉमिक बेसिस पे सिर्फ एक कैटेगरी I'm reading an article from the Hindu right now. इसकी पहली लाइन में बोल रही है कि the concept of creamy layer for the very first time was discussed in Indira Sahni. That's what I'm telling you. यहाँ पे बस एक चीज को हाईलाइट करा गया था कि देखो SC ST को तो तुम साइड कर दो, बस एक कैटेगरी बचता है ओबीसी वाला. फर्स्ट पॉइंट, ओबीसी वाला जो कैटेगरी आता है हमारा, ये जो हमारा ओबीसी वाला कैटेगरी है, ये जो हमारा ओबीसी वाला कैटेगरी है, इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है कि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा फायदे हो जाएंगे. इन दैट केस दैट पर्सन जो अभी सोशली बैकवर्ड है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं रहा, उसका एक सर्टेन इनकम लिमिट सेट करके उसको क्रीमी लेयर बना दिया गया और उसको रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया. दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड इन द इंदिरा साहनी जजमेंट. ठीक है, पीरियड. इंदिरा साहनी इज ओवर. आपको ये समझना होगा, इंदिरा साहनी जो आज के डेट में रूल ऑफ द लॉ है, इट इज टॉकिंग अबाउट SC ST एंड OBCs. यहाँ पे EWS कैटेगरी की बात ही नहीं हो रही है. EWS कैटेगरी एक डिफरेंट कैटेगरी है जो अभी रिसेंट इयर्स में उठ के आई है, क्योंकि हम जब डेटा देखते हैं हमें BPL कैटेगरी दिखता है. अब ये जो 50% वाला क्राइटेरिया है कि 50% है, तुमने 50% था, अगर ये वॉयलेट हो गया तो क्या होगा, आराम से समझो इस चीज को कि 50% का ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है ये एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है. दिस इज नॉट एब्सोल्यूट. According to Article 335 of the Constitution, efficiency of the Constitution is one of the most important factors जिसके बारे में हम बात करते हैं. पहली बात, efficiency was already decided in the M.R. Balaji case, reiterated in the Indira Sahni case, but the point is, it is not, it is not absolute. That is one of the reasons कि हम तमिलनाडु में भी देखते हैं कि excess reservation दिया जाता है because they need it. Similarly, EWS is the need of the time. Point number 1. Point number 2. 8 लाख का ये जो आप क्राइटेरिया बोल रहे हो कि इमेजिन करो मैं 8,10,000 हूँ, उस हिसाब से 8,20,000 बोलेगा कि मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, उस हिसाब से 8,30,000 बोलेगा मैं भी प्रॉब्लम में हूँ. नहीं अभी 10 की बात करते हैं. मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं 20-30 की बात करूंगा. अगर मैं 10 की बात करूँ, हाँ, अगर मैं इसको 8,10,000 अगर गवर्नमेंट समझो इसको कर देता 8,10,000 तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा क्या आपका? तब भी तो प्रॉब्लम एज इट इज स्टैंड. मैं रिजर्वेशन में आ जाऊंगा ना मैम, तो मेरे को रिजर्वेशन मिलने लग जाएगा. अगर इसको 8,10,000 कर देंगे तो मेरे को भी, तो मेरे बच्चों को और मुझे रिजर्वेशन मिलने लग जाएगा. तो आई विल बी हैप्पी. 8,20,000 वाले फिर खड़े हो जाएंगे ना. इस हिसाब से तो रेट्रोस्पेक्टिव कर दो. एक काम करो, so that is what I am saying कि economic value cannot be a criteria for this. There has to be something added to it. That is why OBC plus economic was made criteria. Are you saying people who are in the BPL category should be left to be a part of the BPL category itself? और उनको नहीं उठाना चाहिए? No. I'm not saying that. I'm just saying, what I'm trying to say here is that economic criteria, merely economic criteria cannot be a basis. There has to be something added to it. OBC में भी ऐसे हुआ था जब क्रीमी लेयर आया था. They were OBC. मंडल कमीशन ने कहा था कि 52% of Indian population is OBC. They do not get the reservation. मैं इस क्लास से पहले एक डेटा पढ़ रहा था जिसमें बताया कि 30% you could say जनरल कैटेगरी है इंडिया में. ठीक है, 30% में अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो 10% और रिजर्वेशन दे देते हैं, so it makes it 50 plus 60. I'm not saying that 60% reservation is violative of the basic structure. मैं ये बिल्कुल ही नहीं बोल रहा. बेसिक स्ट्रक्चर का तो डेफिनेशन ही क्लियर है. पॉइंट पे बात कर रहे हो कि ये 8 लाख रुपया क्यों दिया है. दिस इज व्हाट योर पॉइंट इज. नो, yeah, and it has to be different in different places, right? What according to you should be the correct number? There cannot be a right number because it has to be different exactly. states. आज बॉम्बे में गलत होगा. You don't even have a consensus on the fact whether it has to be given to the state government to decide. The central government cannot decide for the entire country. ये तो OBC क्रीमी लेयर में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर ही रहा है ना कि 8 से 12 लाख. EWS में भी वही होना चाहिए. EWS का आप कैसे कर सकते हो? See, you have to understand. अगर हमको BPL कैटेगरी को उठाना है, हमें BPL कैटेगरी को एक पोजीशन देना पड़ेगा ताकि उस पोजीशन के नीचे के लोग अप्लाई करें. अगेन ये ट्रांजिएंट सिचुएशन है. अगर आप कंटिन्यूअसली देखो, एक बात आप समझो एंड क्लियरली इस चीज को समझो कि एवरीथिंग कैनॉट बी अकॉर्डिंग टू व्हाट हाउ वी वांट इट. The government has the quantifiable data. According to the quantifiable data, उन्होंने ये बोला कि कुछ लोगों का जो 8 लाख से, and trust me, ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं EWS कैटेगरी, 80% of it in the last year have incomes less than 4 lakhs a year.
80% of them, more than 80% of them. This is the data of the नीति आयोग. So आपको ये समझना होगा मैं बताऊं आपको, अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए भी है ना, मैं एक EWS सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ इस कंट्री में. मतलब इट इज नॉट सिस्टम पे नहीं जा रहे सर, हम सिस्टम पे नहीं जा रहे. देखिए सिस्टम पे नहीं जाइए. 1% लोग ही तो इनकम टैक्स भर रहे हैं. तो यहाँ पर अगर हम ऑफिशियल डेटा तो कोविड का भी कह रहा है कि इंडिया में 4 लाख डेथ हुई है, तो आई कांट लाइक रिलाई ऑन द ऑफिशियल डेटा. Are you saying that you don't depend on the data of the government? That's sedition. No, sedition तो नहीं है ये, लेकिन I'm just trying to say कि मैं ये नहीं बोल रहा कि क्राइटेरिया सही है, क्राइटेरिया गलत है. All I'm trying to say is कि if it's only an economic criteria, that cannot be right. और अगर हम मान लो उसको करते हैं कि what I'm trying to say is कि we should put it to the state government. जैसे हमने OBC का बोला, क्योंकि आज as my state मैं अपने स्टेट को बेटर जानता हूँ, है ना. सर आप ना एक बात बता रही हूँ आपको, आप एक बात समझो. आप अपने घर में जब राशन लेकर आते हो, प्लीज आराम से समझो, पापा घर पे राशन लेकर आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मतलब आते हैं और बोलते हैं चलो 100 ग्राम तुम ले लो, 100 ग्राम तुम ले लो, 50 ग्राम तुम लेना, तुम तो कम खाती हो, तुम 50 ग्राम ले लेना, और जो ज्यादा खाता है वो थोड़ा ज्यादा ले लेना. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. व्हेन द थिंग कम्स, इट कम्स कलेक्टिवली फॉर द फैमिली. अभी जो ये पैसा निकाला गया है, ये कलेक्टिवली इंडिया एज अ फैमिली के लिए किया गया है. आप तो स्टेट में तो फैमिली है मैम, ओबीसी में तो स्टेट फैमिली हो गया, ईडब्ल्यूएस में इंडिया कैसे फैमिली हो गया. फैमिली बड़ी होती जा रही है हमारी. तो डिवीजन नहीं करा गया है. दैट इज द पॉइंट. आप ये बात गलत बोल रहे हो कि आप जब ये डिवाइड कर रहे हो, इट इज नॉट गोइंग इन द राइट वे. हम एक पूरे देश के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो ये पैसा पे हम एक मेजर चंक ऑफ लोग, इनफैक्ट याद करो, इससे भी टोटली नहीं जाने वाला आपका पूरा इंक्लूसिविटी नहीं होने वाला है, बट एक पार्ट होगा, फॉर श्योर होगा. एक पार्ट ऑफ लोग होंगे जिनके पास पैसे का प्रॉब्लम है, वो उठ पाएंगे. तो यहाँ पर वो ट्राई किया जा रहा है कि किसी तरह इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाए. देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तो आप अगेंस्ट पे हो नहीं सकते. कोई भी नॉर्मल इंसान अपने मतलब दिमाग से, सिंस वी आर इन सोशलिस्ट नहीं, मैं डेवलपमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा. मैम डेवलपमेंट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ द डिबेट. के ऊपर आते हैं, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, द लास्ट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको वाइंड करते हैं यार, मेरा क्लासेस के. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगर हम ऊपर आते हैं, आपने जैसे बोला इन द एंड नागराज केस, Article 15 subclause 4, Article 16 subclause 4, in fact Article 15 subclause 5 also, and Article 46 was mentioned कि भाई ये तो हमारे Constitution का मतलब pillars बन के आते हैं. So it is not justiciable in nature for sure. मगर obviously everyone knows DPSP is not justiciable in nature. मगर क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट वायलेट नहीं करता है, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ये है कि हम अपने जो बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हिला रहे हैं. क्या ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स हिला रहा है? बिकॉज दिस इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. अगर ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आपको पसंद नहीं है तो भाई इन दैट केस SC ST को भी मत दो, मरने दो उनको, जो भी जंगल में मर रहे हैं वो, इट डजंट रियली मैटर. दैट्स हाउ इट इज. तो मैम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो आज अगर कम्युनिटी पर्टिकुलरली उठकर आई जो कहती है कि हम जैसे अभी जैसे बिहार में पर्टिकुलरली होता है कि एक बैकवर्ड क्लास है और एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, ठीक है. तो एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एक एक्सट्रीमली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है. उसका मैं 10% और ले आऊंगा तो कर तो अपलिफ्ट ही रहा हूं. तो मैं काम करूं मेरिट बेस पे खत्म कर देता हूं. अंत्योदया में तो है ही वो, अंत्योदया योजना तो है ही. रिजर्वेशन थोड़ी दे देंगे मैम हर बार. मतलब अगर मान लो 60% हो गया अभी ईडब्ल्यूएस देके, ठीक है, उसके बाद में एक एक्सट्रीमली और फिर एक सुपर एक्सट्रीमली भी आ गई, ठीक है. तो यहाँ पर you don't support inclusive development. Are you saying कि जो मर रहे हैं उनको मरने दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब मैं most of the Indian population is lower middle class, ठीक है. Most of the population इंडिया की तो मतलब खासकर lower middle class, define lower middle class. Somebody who do not have the resources right to send their children to school or basically provide the right kind of education. Most of the people who are sitting in class also here, they will kind of understand कि अगर उनका NLU में भी selection होता है after this, it will be difficult for their parents to provide for their fees every year. Exactly, इसीलिए तो इनको भी रिजर्वेशन दिया गया है. लास्ट टाइम मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स का हुआ है जस्ट बिकॉज़ दे वर ईडब्ल्यूएस और उनको एक तरीके से वो फायदा भी मिला. ठीक है, तो सिलेक्ट हो गए मैम, उसके बाद में फीस कैसे देंगे? ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट हो गए तो they are at least doing something about it. That is the whole point. NLU में जाओगे तो इजीली तुमको मिलेगा क्योंकि बैंक्स भी जानते हैं कि आप नल्ले स्टूडेंट हो नहीं, अच्छे स्टूडेंट हो, पैसा मिल जाएगा. मैम कोई लोन नहीं होता, नॉट इवन गिविंग मनी. दिस इज अ वेरी, मेरा भाई गया है IIT में, he does not come from a very पैसे वाला बैकग्राउंड, तो भी उसको मिला सर 25 लाख का लोन. IIT is different, NLU is very different. NLU में कोई लोन नहीं देता है हमें. चलो ठीक है, that's a different discussion. जानते नहीं, I don't know आप किस जमाने में दियो, बट इस जमाने में तो देता है for sure. चलो ठीक है. So anyway, I think you have a class after this. Yeah. So we had we were supposed to have a 30 minutes class. हमने इसको 52 minutes तक खींच लिया. I hope you enjoyed it and there was no offense taken here. Yeah, it was all in like good faith only. ठीक है. तो चलो, thank you so much यहाँ पर, and that is it from